जब तक आपको पता नहीं है कि यार ये हेयर फॉल भी कुछ चीज़ होती है, आप उसको नोटिस करने लग जाओ तो आपने ये सीधा डर नहीं जाना है कि भाई ये हेयर लॉस हो रहा है। बहुत लोगों को होता है कि वो फिर उसकी टेंशन लेने बैठ जाते हैं और इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उसकी वजह से हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। But honestly, I'll just dive in here a bit. I have had experiences with the clients, and it is actually a real thing. Like some people, they feel much better in terms of their hair loss or hair fall when they stop having creatine. Right. So that, like again, it's not about the studies; it's about the result. This should help a lot of people because after I got a transplant, I told so many of my friends who were dealing with the same issues, and उनको push करके कहा कि यार you can get it done. And I see them today not being able to support that quality of hair or that healthy hair. So it's a lesson for me. So I try to avoid doing all those things which I feel can contribute to any kind of damage to my scalp or hair. Hair has greater social and psychological significance as compared to its biological importance to both men and women. Biologically, hair has no significant function in humans except providing some cranial padding and protection from sun rays. By socially, having a full head of hair means a sign of youthfulness, vigor, and status. The term bad day or the bad hair day is an evidence to the psychological importance of hair, and persons suffering from hair loss may experience a bad hair day every day. This, by excessive advertisement of hair treatments and camouflage techniques in movies, on television, newspapers, and social media, makes it worse. So इस इंट्रोडक्शन से आपको पता लग गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज हेयर लॉस. एंड नमस्ते गाइस, माय नेम इज अभिनव महाजन और स्वागत है आपका आपके फेवरेट टॉक शो में इन द 7th एपिसोड ऑफ बीइंग मैन शो विद वन एंड ओनली एंड माय होस्ट, दोस्त एंड को-होस्ट यशवर्धन स्वामी. Awesome and perfect introduction as always, and all creative as always. Yes, so guys, we'll be talking about hair की बात करेंगे, कुछ stats की बात कर लेते हैं. 60% of men deal with hair loss related issues. Wow. Not hair fall, hair loss. Hair fall और hair loss में एक फ़र्क है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. हेयर फॉल है बेसिकली डिफरेंट फेजेस होते हैं हेयर ग्रोथ के. उसमें एक पार्ट होता है हेयर फॉल जिसपे एवरीवन गोज थ्रू दैट. बट हेयर लॉस इज समथिंग कि हेयर हैज़ फेल ऑफ बट हैजंट कम बैक. सो हम स्पेसिफिकली हेयर लॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. एंड डैंड्रफ भी काफ़ी कॉमन चीज़ है. अपार्ट फ्रॉम हेयर लॉस 17% ऑफ मैन डील विद दिस. And baldness to up to 50% of men in our country. Wow. Right? So, काफ़ी important topic है. And I have dealt with some of the issues. I'm pretty sure Abhinav has also dealt with some of the issues. Although Abhinav I haven't ever seen Abhinav with in a bad hair day, as he mentioned. And we'll talk about it. Yes. Yes. जैसे अभी Abhinav ने mention किया कि physiological importance बहुत ज़्यादा नहीं है, but थोड़ी सी important ज़रूर है. Yes. Basically, वार्मथ के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है. Yes. अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉकिंग अबाउट हेड हेयर की स्पेसिफिकली बात करें जाए और बॉडी हेयर की बात की जाए तो वार्मथ के लिए इंपॉर्टेंट है. Right. अपार्ट फ्रॉम दैट, हेयर इन योर नोज एंड स्टफ लाइक दैट कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड स्टफ लाइक दैट. Yes. बट जैसे आपने मेंशन किया कि एस्थेटिक रीजंस के लिए इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा है. Most important. बिकॉज इफ हेयर की वजह से you do not feel confident for because of any reason, Right. that would haunt you 24/7 365. Right. So that way it becomes very important. Start करते हैं हेयर एंड एस्थेटिक्स से एंड हेयर एंड कॉन्फिडेंस से. सो अभिनव, कभी आपका ऐसा फेज आया कि आपको हेयर की वजह से आपका कभी कॉन्फिडेंस कम हुआ हो या समथिंग लाइक दैट? See, specifically when I talk about hair fall or hair loss, it was not until my late 20s that I started experiencing some sort of it. Yes. Most of it was related to my lifestyle. But when we talk about hair give us a confidence, definitely school mein, as a kid, I used to not like my hair. They used to be very curly and they used to be very unmanageable. Yes. So I used to always say to my mom, मैं ना hair transplant करवाना चाहता हूँ. ये दिमाग ख़राब हो गया तेरा. मैं कहते क्यों? मैंने कहा मुझे ना सीधे बाल चाहिए बिकॉज उस टाइम जॉन इब्राहिम आया था धूम में. Right? So I wanted long hair like that and I tried to grow my hair long at that point of time. और ये जो हमारे देसी नाई होते थे वहाँ पे, सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पटियाला, तो वहाँ पे जाके हम गाछनी मिट्टी के साथ पूरे सीधे करवाते होते थे बाल, तो उससे वो रिजल्ट्स नहीं आते थे. सो दैट वाज डेफिनेटली वन पॉइंट, या आई वुड से कि दैट वाज डेफिनेटली सम फेजेस ऑफ माय लाइफ जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं फील होता था. एंड उसके बाद आई स्टार्ट बिकमिंग कंफर्टेबल विद द क्वालिटी ऑफ माई हेयर एंड स्टफ. And as I said, in late 20s, I started experiencing hair loss or hair fall for the first time. And it was mostly because of my bad lifestyle choices, nutrition, which we are going to talk about in the video. And I used to feel
as if it is not a big deal. जब भी मेरा कोई दोस्त मुझे कहता था कि यार मेरा हेयर फॉल हो रहा है, इवन माई कजन ही यूज्ड टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर फेज इन अ वेरी यंग एज, मैं कहता क्या हो गया यार, विन डीजल बन जाओ, ड्वेन जॉनसन बन जाओ, कराओ शेव, क्या है, मैं करवा लूंगा. व्हेन इट एक्चुअली स्टार्टेड हैपनिंग टू मी, आई अंडरस्टूड इट्स रेलेवेंस to a man, and I'm sure women also, it is very important. I think more important to women than a man, but for a man it is a very sensitive thing. Like वो जब वो आपको पहले दिखता है, वो हेयर थिनिंग होना, वो कहीं पे मेल बॉल्ड पैटर्न दिखना हल्का फुल्का सा, या इवन क्लाइंट्स जब मुझे कहते थे, देन आई स्टार्टेड एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि इट इज़ अ सीरियस इशू. यस, that has been my experience with it. ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है. मेन और वुमेन में एक डिफरेंस है, दैट मेन आर जनरली नॉट वोकल अबाउट दीज थिंग्स. राइट. उनकी कोई स्पेशली फिजिकल इनसिक्योरिटी होती है, वो कभी शेयर नहीं करते. Right. तो एक चीज़ मैं आपको गाइस पॉइंटर दे देता हूँ कि इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज डीलिंग विद दीज इशूज एंड इफ यू पॉइंट देम आउट इवन एज अ जोक, Yes. that friend might be dealing with a lot of issues. Not cool. That might be just killing their confidence. So Yes. keep that in mind. Yes. And yes, so अब start करते हैं. What is secret of the century? What is Abhinav's hair care routine? Because I have seen you, मैं क्यों mention करूँगा, because I have always seen you with awesome hair. Apart from that, I have seen you have long hair also. Yes. When I started following you, this is like 5-6 years back. Yes. You had long hair for very long, then you got them cut. Yes. Yes. So yeah, I was expecting this question to come a little later in the video, but anyways, if you've thrown it around, let's talk on this one. So I've been very wild in my managing my hair. Like I've done all sorts of experiments on this, but one of the biggest secrets, and a lot of people watching this, and you will also agree, and one of the biggest factors that decides how your hair going to come out as an adult is your genetics. And I am extremely lucky in that case that my parents, both mom and dad, they support a good quality hair Yes. on their head. So that is the number one reason, I would say, because I have no other factor other than that I can say with confidence that has contributed for me having whatever you can see on my head right now. Okay. So apart from this, let's talk about some of the things that I have learned during my being on this earth, my time period of being on this earth. Sorry, मैं आपको एक second pause करूँगा. Sure. The best thing I like about being men is that we are being honest, because the thing is, here you could have said that this is my secret. Right. That would have led to more views and stuff like that. But being honest and telling that okay, I'm getting appreciation for this, but in this I haven't put I'm pretty sure you have put in the work, because you are on point with nutrition, sleep, and all these things. Yes. But a lot of it has to do with genetics. So I appreciate that. Definitely. Thank you so much. I'm happy that you acknowledge that, and I appreciate that too. So let's talk about the hair care routine. So now, if I have to talk about my present hair care routine, it's a very simple one. Okay, so so I usually divide, even if I have to give advice to anyone, I usually divide it into a daily hair care routine. And a daily hair care routine, I'll just make sure if it's winters, I'll wash my hair with lukewarm water once, and if it's summers, I'll do it like twice. Apart from this, I don't do much. I do apply a hair serum. I make sure that it's sulfates free and it does not have any parabens and perfume and fragrance, and we'll talk about that more in the further conversation. So that's more about it in the daily hair care routine. That's all I do. What I've stopped doing in day-to-day life is I used to use a lot of dryer on my hair to style it. That is something that I've stopped because I realized it was damaging the cuticle or the scalp of my hair, and there was significant hair thinning that I was observing. So I've stopped doing that. So if you're someone who is struggling with hair loss, hair fall, whatever hair problems that you're going through, that is the one thing that you would like to avoid in that scenario. Also, in my earlier years when I was into modeling, or when jab koi zyada dikkat nahi hoti thi hair ki, and when everything was on my side, then I used to use a lot of hair straightener. So I've stopped that too. Because I think it's important to tell do's also and don'ts also when we talk about hair care routine. Now I'll talk about the weekly hair care routine. I'll massage my hair once in the winters, twice in the winters, because then you have lesser oil and lesser sebum. So just for the blood flow, that is it. वो वो बनी हुई है हमारी रीत बनी हुई है बहुत पुरानी की, that you do. And the same thing that I will do in the summers, but I'll do just once. And apart from this, I'll get a head spa done twice or thrice a month.
and that's about it. That's all that I do for my hair, nothing more. But this is just the superficial stuff that I'm talking about right Physical, now. yes. Yes, physical stuff I'm talking about. I do take care of my diet. I do track. I do get my blood reports done, because we will be discussing about the importance of a lot of minerals and vitamins in your diet and in your lifestyle, which will influence that. And I have done that in the recent times, just in the last few weeks, and I've seen significant amount of change in my hair quality. And if you don't believe me, you can go and watch the first episode. Yes. And if you watch the first episode, you will see that significant change that I'm talking about. So it's like a practical thing that we do over here. So that's it. Like if I have to keep it short, that's the only thing that I do for my hair. Right. So another question for you. So जैसे आपने you mentioned that when you were younger you wanted straight hair. Yes. तो अब आप try करते हो straighten करने का hair की like never? Never, man. I'm just thankful for whatever I have and I've been given by God, and I love it. Yes. The quality of my hair, the structure of my hair. वो उस time आप ना you get influenced a lot by Bollywood, by people around you. आपको वो क्या कहते हैं, अपने हाथ में पड़ा हुआ लड्डू नहीं अच्छा लगेगा, दूसरे के हाथ में पड़ा हुआ लड्डू टेस्टी लग रहा होता है, जैसे मर्जी ले लो. So it वो straightening और hair color भी मैंने बहुत बार करवाया. I think if we can get some pictures over here, they will understand. So I used to get a lot of hair color done during my modeling career. So I used to work with Schwarzkopf and L'Oreal. So some days we used to color our hair like 3 times, 4 times in just one single day. Uस time I used to feel invincible कि कुछ होता नहीं था. But I've stopped doing that, and I've seen that same pattern in my uncles. So they used to be very I would say wild with experimentation and stuff, and I see them today not being able to support that quality of hair or that healthy hair. So it's a lesson for me. So I try to avoid doing all those things which I feel can contribute to any kind of damage to my scalp or hair. Right, that is great. एक चीज़ मैं mention कर देता हूँ, जैसे lot of people who have curly hair, especially with their children, curly बाल आ जाते हैं तो उनके बार बार hair cut कराते रहते हैं, वो मुंडन कहते हैं जिसको. उससे कुछ benefit नहीं होता, because जो curly है वो आपके hair follicle की shape ऐसी है. Exactly. So in a way you can't change it till the time you replace the hair follicle. Funny thing, I'll tell you, I tried once. I won't say I shaved my head off, but someone told me कि ऐसे ना बाल बिल्कुल छोटे छोटे कर दो तो सीधे बाल आते हैं. And I've done that few times in my childhood कि हाँ बिल्कुल एक बार टकले हो जाओ तो सीधे बाल आएंगे. Then only to understand that it doesn't work like that. Right. Yeah. So in the end, curly अगर है, that's a part of your genetics. Thank your parents. Yes. And that's what. Again, my girlfriend, थोड़ा सा context दे देता हूँ, my girlfriend also has curly hair. And according to her, there are these products now जो straighteners होते हैं, right, which do not damage hair that much. So if you want to know, you can drop us a DM. I don't want to, mention a name of a brand because, that might look like advertisement here, right? But if you can always DM me and ask what the brand is. And अच्छा खासा costly hair dryer है. But if any of the brands is watching, hair care brands or hair equipment brand, please do consider us. Not at all. I'll tell the truth. I'll tell about the brand which my girlfriend uses, right? Straightener and dryer भी आजकल आगे हैं काफी, according to them, right? Innovation. It might just be marketing or it might be innovation also, right? So that's what. एक और next चीज आ जाती है अपनी dandruff. Have you ever dealt with dandruff? I have dealt with dandruff, but it was mostly during the time because hair से ज़्यादा मुझे skin problems रही हैं मेरे life में, and it's very visible right now. And so I used to take a lot of medication like azithromycin and isotretinoin for my skin, for my acne, for my pimples. So it always have adverse side effects. So one of the adverse side effects used to be having dandruff, having folliculitis, having those small bumps on your head and scalp. So I think only during those times I've experienced that. Right. So basically we need an episode on skin also. Yes. Because now it seems very sorted. It is getting better, but still like I have to be very careful with it. But we will make that. We will make that happen. For sure. एक और चीज़ बताता हूँ, guys की susceptibility to dandruff थोड़ी ज़्यादा होती है. Yes. Reason for that is androgens. Androgens ज़्यादा होते हैं तो एक certain pathway, I don't remember the exact pathway, but उसकी वजह से dandruff की chances थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. Right. Because oil production ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से. तो if you are someone who's dealing with dandruff, 2 reasons हो सकते हैं. एक तो जैसे अभिनव का केस था, it was excessive dryness because of the antibiotics. अगर excessive dryness है तो fix dryness, or it can be fungal है तो fix that. For that, अगर fungal है तो use shampoos like
head and shoulders. Yeah, like mostly they use the doctors recommend ketoconazole. Yeah, ketoconazole. Anyways, whatever the problem that you're facing, if it's skin problem or the hair problem, we highly suggest that do not take any drug medication just based on the information that we're providing. Please get in touch with a dermatologist or a cosmetologist who is experienced and who can genuinely help you out with that. Definitely, because in the end, see, whatever we ever say, we are just providing you guys with experience and knowledge based on what we have learned. इससे याद आता experience और knowledge की. It's very funny, today we are recording this 3 days back. Andrew Huberman का podcast आया इस पे on hair only. तो guys, see, if you are just interested in the science aspect, although हम काफी science भी discuss करेंगे, especially in terms of hair loss and stuff like that. Science aspect देखना है तो nothing beats the man himself, Andrew Huberman, and he's the Jesus of science right now, right? He's the G. He's the G. He's the G. So, listen to that episode, and some of the stuff is from his episode also, from his experiences also, and plus our experience as always. And that's what. Next करते हैं, before we get into hair loss and hair cycle understand करने से पहले थोड़ा hair graying को cover कर लेते हैं. Right. तो basically hair graying is your hair becoming whiter / grayer. Yes. So, Abhinav, do you have anything to share on this? Yeah, like and now I'm in my early 30s and I've started noticing from last 2 to 3 years the speed at which my hair are actually graying is faster, and there are a lot of other factors that I will just talk about as to what contributes to it. But hair graying is a very common thing, and because we deal with clients, we are on social media, we keep on getting the messages. A lot of these young people, even in their teens and in their early 20s, they are like कि भैया हमारे बाल ग्रे हो रहे हैं, क्या करें, क्या solution है? And I honestly don't have a perfect answer other than telling them that it's all related to either firstly your genetics, okay? And if your genetics are fine and still it is happening, always look at your lifestyle, like your nutrition, the sleep, whatever, because it is a clear sign that a certain gene of your body has become active, which is fasten your aging in terms of whatever the color, because जो वो color होता है वो आता है एक हमें वो बोलते हैं इसको melanin, that is the I think the stem cell or the cells or melanocytes, yeah, हाँ, the hormones, उसकी वजह से जैसे हमारे skin के लिए होता है उस तरह हमारे hair के लिए होता है melanin. So that melanin as it keeps on reducing, आपके color जो है hair का वो grey होना शुरू हो जाता है, and it usually जो contributor सबसे बड़ा होता है वो आपका aging process का वो है आपका stress. Like because last 3-4 years I have realized as I went into my 30s, अलग तरह की responsibilities, अलग तरह के ड्रामे लाइफ में शुरू होते हैं. You start thinking too much, and which I tried not to, but you can't stop thinking because you realize कि ये खत्म नहीं होएगा. There are more responsibilities that are waiting for you. So definitely fixing your lifestyle can slow down hair graying, but there is nothing in this world that can reverse hair graying. So you just have to be honest कि जो हो गया है वो हो गया, उसको slow कर देते हैं. Let's fix our lifestyle and we will talk about it, but let's fix the nutrition that we are having, and of course आमला खाना शुरू करो, विटामिन सी, ये सब चीज़ें, कोलेजन वगैरह जो हेल्प करता है आपको, उसमें आपको improvements करने की ज़रूरत है जिससे you can slow it down. But in itself there is nothing magical which can make it happen. But if you still, and I don't think hair graying is too big of a problem. I think some men, most of the men with gray hair, if they know how to carry it, they really look sexy if they can do it. But apart from this, if you feel ashamed about it, or if it is affecting your confidence or your self-esteem, just get them colored, man. Don't think too much about it. This is a great point, because देखो किसी भी चीज़ की वजह से आपका self confidence या self esteem कम हो रही है, literally get it colored. And now we have reached a time where quality stuff, quality ingredients are available and stuff like that. So it's not like guaranteed कि आप hair color use करोगे तो आपकी कोई damage हो जाएगी. Just don't overdo it, because overdoing तो पानी भी आप ज़्यादा पी लो, hyponatremia हो जाएगा. Right? People can die of drinking too much of water. This is the best example we have for everything. Right? Yes. I think मैं 3rd या 4th time use कर रहा हूँ ये. I like it. Water is the best example for that. And so in the end अगर आपको white hair से issue है, number one thing is always fix your lifestyle, fix your nutrition. If that is fixed, then just get it colored if that's causing too many issues in your life and confidence. So now let's talk about the hair cycle. Simple है, 3 parts होते हैं. First is the anagen, that is the growth phase. Next is the catagen, जिसमें transition हो रहा है, basically आपका hair
फॉल हो रहा है. Right. थर्ड इज द टेलोजन, जिस टाइम पे रेस्ट हो रहा है. तो आपके बेसिकली हर हेयर फॉलिकल 3 फेजेस से जाता है. फर्स्ट इज द एनर्जन, जिसमें ग्रोथ हो रही है. Right. सेकंड जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है, बेसिकली वो टूट रहे हैं. थर्ड जिसमें एक रेस्टिंग पीरियड है. Right. अब इन सिंपल टर्म्स आपको हेयर फॉल और हेयर लॉस समझा दूं तो हेयर फॉल इज बेसिकली कैटोजन ट्रांजिशन वाला पार्ट. Right. हेयर लॉस उस टाइम पे होती है जब कैटोजन और टेलोजन आपके एनर्जन से ज़्यादा ओवरपावर कर जाते हैं या बेसिकली बड़ा हो गया. ग्रोथ वाले फेज को, जो ब्रेकेज और रेस्टिंग वाला फेज है, वो जब ओवरपावर कर जाता है ओवर टाइम, दैट लीड्स टू हेयर लॉस. So it's somehow similar like building muscle. कि वो या एग्जैक्टली anabolism एनाबॉलिक है, कैटाबॉलिक catabolic है. जैसे आपका मसल लॉस होगा, सेम लॉजिक है. Right. Right. राइट. बस इसमें ट्रांजिशन फेज, एक बेसिकली रेस्टिंग फेज, टेलोजन वाला फेज एडेड है. right. उसमें कोई रेस्टिंग वाला फेज ऐसा नहीं होता. राइट. सो हेयर लॉस कॉजेज की बात कर लेते हैं. मेन ऑलरेडी थोड़ा सा हम कवर कर चुके हैं. फर्स्ट इज द स्ट्रेस. Right. नेक्स्ट इज द स्ट्रेस लेवल्स. Right. अगेन इफ यू आर, सिंपल लॉजिक से समझा देता हूँ. वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड, आपकी बॉडी को, जब हम अर्ली मैन थे, 2 प्रॉब्लम्स होती थी. या तो खाना अवेलेबल नहीं है, Yes. या कोई मुझे खाने वाला है. Yes. राइट. दोनों में आपको एनर्जी इन अ वे जरूरत है. Yes. एनर्जी जरूरत है, बट एनर्जी इतनी ज्यादा है नहीं आपके अंदर. एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स. Right. तो आप सिंपल लॉजिक देखो कि अगर आपकी बॉडी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपकी बॉडी को सर्वाइव करना है, Right. would your body want to spend resources on something like your hair? Yes and no. Yes. ये इसमें थोड़ा जेनेटिकल एस्पेक्ट हो जाता है. बट अगेन, इफ यू आर डीलिंग विद क्रॉनिक स्ट्रेस, मेंटल एंड और एनवायरमेंटल. मेंटल तो हो गया बेसिकली स्ट्रेस रिलेटेड टू एनीथिंग. Right. Right? It can be related to diets and all that stuff also. For example, if you have been dieting since years, nutrient deficiencies deep कर रहे हो, और कुछ भी स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, गाइस को करियर रिलेटेड स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस होना इज टोटली फाइन. Right. बट स्ट्रेस से जब वो क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है, दैट इज व्हेन दीज इश्यूज स्टार्ट अराइजिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल. Yes. अब इसमें क्या है, आपको एक आधा एग्जांपल ऐसा भी दिखेगा जिसके बहुत ज्यादा स्ट्रेस से डील कर रहा है, बट उसके हेयर पे कोई इशू नहीं है. राइट. वो आप उसे एज अ रोल मॉडल ना लेके चलो कि यार कि हाँ इसकी वजह से हेयर लॉस नहीं होता स्ट्रेस की वजह से. इट्स जस्ट दैट जेनेटिकली एवरीवन इज डिफरेंट. फॉर सम थोड़ा सा स्ट्रेस लिया, मे बी हेयर पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया. Exactly. दूसरा हो गया जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर. जैसे अभी अभिनव आपने मेंशन किया कि केमिकल्स यूज कर रहे हो. Right. कलरिंग दिन में 3 बार चल रही है. Right. वैसे आई एम क्यूरियस, ये दिन में 3 बार कलर करने वाला क्या लॉजिक? So it used to be a ramp show. So it used to be a ramp walk. So we have to do. It was a fashion show that we used to do. So वो सुबह से लेके शाम तक we had to. It was for L'Oreal and Schwarzkopf, so these brands. So उनको वो change करवाने होते हैं just to display the model. So that is when it used to happen. कि वो दिन में 3 से 4 बार you have to change the hair color. So then they used to have the bleach वाला फटाफट से, and then नया color उसके ऊपर put on, then नया color put on. Right. So that is. So guys, अगर आप इस इंडस्ट्री में और आपके साथ भी सेम चीज हो रही है, तो that might be one form of stressor. So keep that in mind. Again, जो भी stressor है, even if it is lack of sleep, just start working on it. Sleep पे we have a very crazy episode. Yes. Watch it. It was Yes. episode number what? Yes, I think it was episode number 3. First of all, बादाम खाते हैं अभिनव for sure. Great memory. Great memory. That's good. And this is a sign that Abhinav's sleep is also good these days. So this is the first cause. Next cause आ जाता है आपका hypothyroidism. Right. Hypothyroidism क्या है? बेसिकली थायराइड हार्मोन आपका काम नहीं कर रहा है इतना ऑप्टिमली. सो ब्लड वर्क कराओ, TSH लेवल्स चेक कराओ. Yes. TSH लेवल्स में भी नहीं आ रहा तो रिवर्स T3 एक चीज़ होती है, वो चेक कराने की. कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है, बट मोस्ट केसेस में TSH लेवल्स आ जाते हैं. जस्ट फिक्स दैट. अगर उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है, वो फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा. एक और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम बता देता हूँ. अपार्ट फ्रॉम हेयर लॉस फ्रॉम योर हेड, हेयर लॉस फ्रॉम योर आईब्रोज. बिकॉज अगेन सेम लॉजिक है, आपकी बॉडी के पास न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी नहीं है, या आपकी बॉडी के पास सिग्नल जा रहा है कि यार थायराइड हार्मोन इतना बन नहीं रहा है, तो योर बॉडी prioritizes your organ function and important things more than hair and stuff like that. Right. नेक्स्ट आ जाती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, स्टडीज के हिसाब से प्रूवन ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. B2, विटामिन B2, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12. B2 होता है राइबोफ्लेविन, B7 होता है बायोटिन. वेरी कॉमन, जब भी किसी को हेयर लॉस इशू होता है सबसे पहले बायोटिन पे जाते हैं. नेक्स्ट इज B9 इज फॉलेट, एंड विटामिन B12 इज methylcobalamin. Yes. I forgot that. Right. So स्टडीज में बेसिकली ये प्रूवन है, बट इसके अलावा विटामिन C, जिंक, D3, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, इनफ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स एंड ओमेगा एक्सेट्रा शुड बी देयर. वो मैं बताता हूँ क्यों. अब स्टडीज और नॉन स्टडी में, क्योंकि हर
स्टडीज़ को कंडक्ट करना, अच्छी स्टडी को कंडक्ट करना एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. तो हर न्यूट्रिएंट के लिए नो वन वुड डू इट टिल द टाइम समवन इज फंडिंग इट. Yes. राइट. सो अभिनव, कुछ आप ऐड करना चाहोगे इसमें? I will, once you are done with the topic, I have few pointers that I'll Yes. go through, but I would like you to finish one. यस. सो बेसिकली बी वाइटामिन के अलावा ये सारे जो वाइटामिन मेंशन किए फिर से बता देता हूँ. विटामिन सी, जिंक, D3, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, इनफ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, ऑल ऑफ देम प्ले अ रोल. लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. जैसे मैंने आपको मेंशन किया हाइपोथायरॉयडिज्म का, इन सारी इनमें से काफ़ी डेफिशिएंसीज है, स्पेसिफिकली आयरन, बी स्पेक्ट्रम वाइटामिन, जिंक, सेलेनियम, जिनकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है. Right. अब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है. अब हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, इट्स द सेम थिंग. Yes. सो ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट. आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, एंड इफ यू आर अ वेजिटेरियन, लुक इनटू दीज लेवल्स, बिकॉज आयरन एंड B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है. एक और एग्जाम्पल देता हूँ. अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो, बहुत कॉमन डेफिशिएंसी है, उसमें क्या आपकी स्ट्रेस रेजिलियंस मैसअप हो जाएगी. तो वो इनडायरेक्टली आपके स्ट्रेस related hair loss से link हो जाएगा, but in the end it is being caused by this deficiency. Right. So that's why we need to focus on a healthy, balanced diet and making sure all of the nutrients are being taken care of. Right. Perfect. Yes. So brilliant. Like I think बहुत ज़्यादा दिमाग खुल गया होगा हमारी ऑडियंस का इतना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके. I would just like to start firstly with the most important factor जो यश ने यहाँ पे बोला, I think, which is the number. Of course, genetics are there, but the number one factor that men are facing today, जिसकी वजह से they are facing all sorts of health issues, not just the hair fall, but of course we are talking about the hair fall or the hair loss. We will consider that in this particular talk, and that is stress. And as Yash said, आपकी बॉडी का काम है आपको जिंदा रखना. Just consider your body has a certain kind of a battery inside you, right? Now, अब वो बैटरी को एनर्जी मिलती है एक्सरसाइज से, स्लीप से, खाने से, एंड देयर आर डिफरेंट दीज लाइफस्टाइल फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व, जिससे वो बैटरी चलती है एंड वो एक हेल्दी आपका बायोकेमिस्ट्री मेंटेन करके रखती है. नाउ लेट्स से आपने अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया है, आपके न्यूट्रिशन नहीं है, डेफिशिएंसीज किसी ना किसी वजह से हो रही है, आप सो नहीं रहे हो, या आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है आपके काम की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से, वही जो गर्लफ्रेंड लड़ती है बार बार जिसकी वजह से हमारे BP हाई होते हैं. तो इस तरह की दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही हैं. तो हो क्या रहा है, बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी टू मच ऑफ स्ट्रेस ऑन दी बॉडी, एंड वो जो बैटरी सोर्स है आपका, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं बाहर से, आप खाना सही नहीं खा रहे हो. उसके पास क्या चॉइस है, आपको ज़िंदा रखना सबसे पहली चॉइस है. इट डज़ नॉट केयर अबाउट कि आपके बाल रहें, कि आपकी स्किन ठीक रहे, कि आपके मसल्स बने रहें, ऐसा कुछ नहीं चाहिए. उसको सिर्फ सर्वाइव करना है. दैट इज़ दी ओनली वर्क, बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म. यू आर जस्ट एन स्मार्ट ऑर्गेनिजम्स हुज मेन जॉब फर्स्टली इज सर्वाइवल, देन वी कम टू रिप्रोडक्शन, राइट. सर्वाइवल के लिए व्हाट इट विल स्टार्ट डूइंग इज कि उसको जहाँ जहाँ से जो जो रिसोर्सेज चाहिए, बिकॉज ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, B12, B9, बायोटिन, वट एवर वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट, ये रिक्वायरमेंट्स है, इनके बिना बॉडी नहीं काम कर सकती है, लाइक. सो ये कहाँ से मिलेंगी? ये आपके जो सोर्सेज जो आपकी हेयर क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं, जो आपके बोन मैरो में होते हैं, ऑल दीज सोर्सेज विच शुड बी हेल्दी, it will start depleting those sources because it does not have a choice, right? So whenever you are facing any kind of a health issue, even if it's just hair loss or hyperthyroid or whatever it is, start seeing कि वो क्या चीज़ें हैं आपके लाइफस्टाइल में, आपके न्यूट्रिशन में, जो आप सबसे पहले फिक्स कर सकते हो before you start going for any kind of a treatment, right? And a medical practitioner or doctor will help you out with that. So make sure कि that stress part, whatever you experience, whether it's physical stress, mental, emotional, whatever, जहाँ भी कहीं से आ रहा है, उसको एक बार फिक्स करो, because once you start fixing it, the results of whatever you want in your health parameters to improve, they will actually start improving without even starting any kind of a treatment or a medication. Like that happens first. Like firstly, you need to start feeling healthy about yourself, right? So, and of course, vegetarians and vegans, because a lot of nutrients that are available in the animal resources, a lot of people might want to argue in this scenario, but it is true, and I've experienced this because I became vegan in 2019-ish. So by June 2019 to 2021, for good 2 years, I was a vegan, and a lot of people who might be following me, they know it. And I did experience some sort of, like, my health parameters, they improved, but I did experience some sort of hair fall or hair thinning, if I would say. And it was because I was not taking care of my vitamin Bs, the Bs, jo vitamin B12s and B2, B7, B7, B9, yes, B12. yes. So
डेफिनेटली दैट वाज अ वेकिंग पॉइंट फॉर मी, बिकॉज हम कई बार खुद ही ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि आज से मैं वीगन हूँ, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि इसकी रिपरकशंस क्या हो सकती हैं हमारी हेल्थ के ऊपर. सो वेन एवर यू आर ट्राइंग अ न्यू काइंड ऑफ अ डाइट, इवन इफ इट्स जस्ट अ कीटोजेनिक डाइट, जस्ट मेक श्योर कि बिफोर यू, because all these diets, they are mostly famous for fat loss and muscle building. Before you move on to a diet, ask yourself, does your diet have enough of nutrients, minerals to support your general health first? Because if it is not supporting your general health, then भाड़ में गया muscle growth, भाड़ में गया fat loss. सबसे पहले आपकी हेल्थ ज़रूरी है, बिकॉज आपका मसल बन जाएगा, फैट लॉस भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही चली गई फिर आप क्या करेंगे? सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू ट्रीट एनी काइंड ऑफ syndrome or any kind of problem in your body, firstly look at your general health once. If you are healthy, then you're good to go for any other kind of treatment. Like, अभिनव बड़े अच्छे से सम अप किया आपने. एक और चीज़ मेंशन करता हूँ, लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि हेयर रिलेटेड या कोई डेफिशिएंसी आती है, हमें पता लग जाता है, डॉक्टर ने हमें दवाई दे दी कि यार आपने 2 वीक्स के लिए आपने ये वाइटामिन खाने हैं. हम 2 वीक्स के लिए खाते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन हमने ठीक नहीं किया. बिकॉज ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच वी आर मेंशनिंग, दीज आर नीडेड regularly, daily. Vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin K, all of these can be stored in your body because fat soluble vitamins है. But बाकी सारी चीज़ें जो mention की है, we need that daily coming from our diet. And if it cannot come from the diet, जैसे अभिनव ने mention किया कि vegan sources में थोड़ा difficult हो जाता है, then consume the vitamins regularly, not just temporarily. विटामिन डी आपने लिया, आपको डॉक्टर ने कहा कि यार 6 वीक्स के लिए ले लो, आपने उसके बाद छोड़ दिया, फिर से डेफिशिएंसी होगी, एंड द सर्कल कंटिन्यूज. सो गेट योर ब्लड वर्क एवरी नाउ एंड देन, get good coaches, and that would help. That is a very beautiful point, because as a coach and as someone who creates content through videos, we do get sometimes that lashback from our audience कि आप ये supplement क्यों recommend कर रहे हो? Supplement तो दवाइयाँ होती हैं, आप दवाइयाँ कैसे दे सकते हो? And our argument is always the same. If you're getting it through whole foods, if you're getting through your natural diet, अगर आपको कोई health problem नहीं है, then you don't need to take it. But let's be honest, our soil, the quality of our soil is not the same as it used to be like 50 years ago. It's depleted from the nutrition. And we're not able to get, and the kind of lives we live, not just the entrepreneurial lives, just a normal day-to-day, a job-going person, he does not have the time to cook 5-6 meals. He does not have the time to take care of like 3 times मैं fruits खाऊंगा, 3 times vegetables खाऊंगा. And that is what we experience with the clients. We can try to program it as much as possible in the best way, but let's be honest, there is only so much that you can do in a day. And when we talk about lifestyle and nutrition, if popping a pill can give me that advantage of health over someone who does not do that, why would I not do that just to make my life better and just to make sure that my health is in point? So that is something we always tell our clients whenever we get that question back कि सर मैंने supplements नहीं लेना चाहता, मैं ना vitamins नहीं लेना चाहता, because they are scared कि दवाइयाँ दे रहे हैं, दवाइयाँ बेच रहे हैं. That is great, because in the end, see, vitamins आपके डायरेक्ट फैट लॉस या मसल गेन रिजल्ट्स में कुछ नहीं हेल्प करेंगे, बट इन दी एंड अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो रही है, योर फीलिंग बेटर, योर हेयर स्किन इज बेटर, इट्स एक्चुअली द बिगेस्ट विन इज दैट. राइट. एक आपको एग्जांपल दूंगा इसमें. देयर वाज दिस न्यूट्रिशनिस्ट, यहीं है, फ्रॉम आर सिटी ओनली. सो उसकी डाइट से लोगों का हेयर लॉस हो जाता, बिकॉज डाइट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वो थी. शी क्लेम्स दैट शी इज अ डॉक्टर ऑल्सो. सो उससे लोग जाके पूछते थे कि बिकॉज शी वॉज द ओनली वन व्हेन शी स्टार्टेड आउट, सो पीपल यूज्ड टू आस्क देम कि मैम हेयर लॉस हो जाएगा, एंड हर रिप्लाई यूज्ड टू बी हाँ डाइटिंग से हेयर लॉस तो होता ही होता है. राइट. एंड पीपल स्टिल यूज्ड टू गो फॉर द डाइट बिकॉज दे वांटेड टू लूज वेट, बट ऐसा कुछ नहीं है. सी, डाइट में यू नीड टू क्रिएट अ कैलोरिक डेफिसिट, नॉट अ न्यूट्रिएंट डेफिसिट. न्यूट्रिएंट डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो तो योर डाइट इज बैड, चेंज योर न्यूट्रिशनिस्ट और learn online. We have a full-fledged podcast on that, how to set up your nutrition plan. Check that out, and that should help. Yes, as said, guys, just know fast weight loss. It is a big reason for hair fall or hair loss, and because आप एकदम से जो crash dieting, and that's like most of the dietitians, because we call ourselves nutritionists or coaches, whatever you want to call, but there are a lot of dietitians and we have nothing against them. It's just that we are talking, and this is a talk show that we are doing it, so we are just being very honest with everything that we are saying. So a lot of dietitians, they provide salad diets, crash diets, because when you go to a dietitian, all you're expecting is to just lose weight. So anyone who is claiming to help you lose 10 kgs in 1, 2, 3 months, whatever it is, and who is saying कि आपको fast fat loss हो जाएगा, just know that there can be side effects of it, and hair loss and hair fall is one of that. And a lot of people come to me as clients. They have done certain dietitian course,
and they are having hair fall, and they're like, we are trying biotins and we are trying these treatments, ketoconazole, the minoxidils and stuff, but still, you know, we are not happy. And I'm like, did you check your parameters? Did you check your health, blood work, anything? We get their blood work done, iron की भी कमी है जी, जिंक भी कम है, मैग्नीशियम भी कम है, विटामिन B12 भी कम है, D3 का तो किसी को ध्यान नहीं है, D3 में तो सभी कम होते हैं. जैसे ही फिक्स करो, ट्रीटमेंट्स भी काम करती हैं, ओवरऑल हेल्थ भी सही होगी, एनर्जी भी सही होगी, फैट लॉस भी होना शुरू हो गया, टोनिंग भी होगी, सब कुछ अच्छा लगने लग गया. 100%. सो द ओवरऑल फीलिंग ऑफ लाइफ, इट इज़ अ बिग पैरामीटर एज टू what is exactly happening. अगर आप सही में you're feeling energy, you're feeling good about yourself, and you're feeling good about the life around you, that is a good sign that you are a healthy individual, both mentally and physically. So it is, but again, Yash, I would just like to thank you, because you are always kind enough to ask me about my experiences, and I've not done that in return. So today I just want to know, because this is your topic, and this is something I want to put the limelight on you this time. Thank you. So please tell me about your experience with hair loss or hair fall, so that I can have some understanding, and as a friend, because we are friends now, I can understand you a bit better, and because our audience is also there to who have the chance or the opportunity to learn more about this from you. Yes. So guys, we'll be talking about male pattern baldness. I dealt with that for very long, and in a way, indirectly, I still deal with that. So पहले before we start, before मैं आपको science बता दूँ, थोड़ी सी अपनी story बता देता हूँ. Till 20 years old, my hair quality etc. was very good. उसके बाद I started losing hair from front of my hairline, and तब since obviously I was totally into nutrition, मैंने nutrition का सब कुछ try कर लिया, सब कुछ देख लिया, बिकॉज इसमें ना काफ़ी चीज़ें जेनेटिकल होती हैं. जेनेटिकल में मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट देखा कि यार मेरे मॉम डैड के हेयर कैसे हैं. मॉम डैड के हेयर वर वेरी गुड, राइट. सो आई नेवर बिलीव्ड कि यार मेरे को मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो सकती है, एंड दैट वाज कमिंग फ्रॉम माय mom side basically. Right. So basically mama and nanu and all these things, all of them were dealing with these issues. So काफ़ी टाइम तक तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया. मैं साइंस करके पढ़ के ये न्यू ट्रेन कर लिया, वो कर लिया, ये शैम्पू ट्राई कर लिया, वो कर लिया, बाबा रामदेव का कुछ आया वो ट्राई कर लिया. तो काफ़ी टाइम तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया. So once I understood the whole everything which we would be explaining in a minute, बिकॉज मेरी फर्स्ट चीज़ हमेशा होती थी कि यार साइंस में हमेशा आंसर है इस चीज़ का. आई ट्राइड सो मैनी थिंग्स, एंड towards the end I came to the conclusion that I should get a hair transplant. Right. And guys, this is the first time I'm talking about this publicly. Although a lot of people notice that in my friend circle, मैंने बहुत लोगों को guide किया है who were dealing with the same problems. I used to just tell them get it done, because according to me it's much better than dealing with confidence issues 24/7 365. I'll share the experience in a minute, but process समझा देता हूँ आपको. So lot of times अगर आपको लग रहा है कि यार genetic issue है, just look into your mom's side also, dad's side also, and chances are if that's the issue, you need to fix things which we are discussing in a second. So थोड़ा भी understand कर लेते हैं process कि male pattern baldness या androgenic alopecia होता क्या. Alopecia is basically hair loss, not hair fall, right? So basically balding. And androgenic is basically the word which is androgens, right? So basically दो चीज़ें इसको affect करती हैं. First is genetics. Every male has lot of testosterone in their body, right? But there are certain androgenic genes which make it susceptible for some men to lose hair because of conversion to DHT. Right. So दो processes हैं. पहला है कि आपके genetics, कि आपके hair follicles are they susceptible to hair loss because of DHT. Second thing is testosterone converting to DHT. Right. So dihydrotestosterone. Okay, perfect. Yes. So testosterone आपकी body में it has to convert to DHT because DHT is related to a lot of stuff. Right. Muscle, voice. Right. Basically secondary male characteristics. Right. Sex drive for a lot of people. Right. For actually everybody. So DHT is an important compound for the body. That's why your body converts it into DHT. But for some people अगर DHT convert होता है उसकी वजह से they start losing hair because their hair follicles are susceptible to that kind of hair loss. So basically ये universal नहीं है. DHT सब में everyone has DHT in them, but कुछ लोगों का hair loss होता है उसकी वजह से, कुछ लोगों का नहीं होता है. So that is different. 80% of male pattern baldness in India is related to testosterone and DHT. This is a stat. So basically, just keep in mind अगर आप डील कर रहे हो दो reasons होंगे इसके. Number one, testosterone conversion to DHT. दूसरा आपके genetics. Right. So basically, androgenic receptors जो specifically DHT
के साथ वर्क करते हैं. सो बेसिकली सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट कैसे होता है. एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं 5A रिडक्टेस पाथवे. 5A रिडक्टेस एक एंजाइम है बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है. 2 जगहों पे रिलीज होता है आपकी बॉडी में. एक तो आपकी लिवर में होता है, एक आपकी प्रोस्टेट में होता है. राइट. सो दिस इज द पाथवे. एक और भी चीज़ ऐड कर देता हूँ क्योंकि और कहीं आई एम नॉट श्योर हमें टाइम मिलेगा कि नहीं. जिंक इज अ 5A रिडक्टेस इनहिबिटर. तो अगर आपको जिंक डेफिशिएंसी है और आप एक्चुअली मेल पैटर्न बॉल्डनेस से डील करते हो तो फिक्स द जिंक डेफिशिएंसी एंड दैट कैन हेल्प. राइट. इसका मतलब ये नहीं है जिंक ज़्यादा करने से आपका 5A रिडक्टिव पाथवे ज़्यादा ही इनहिबिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. बट इफ़ यू आर डीलिंग विद डेफिशिएंसी स्टार्ट विद फिक्सिंग जिंक. अगेन इस पर कोई आपको डायरेक्ट स्टडी मिले ना मिले आई एम नॉट श्योर, बट अगेन जिंक इज अ 5A रिडक्टेस पाथवे इनहिबिटर. सो एड जिंक इफ यू आर डेफिशिएंट ऑफ दैट. राइट. सो नेक्स्ट इज हाउ डू यू नो यू हैव इट. फर्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले यू नीड टू मेक श्योर कि लुक एट योर मॉम डैड, देन मॉम साइड, then dad side also. Right. At times chances are that your dad does not have it but your chacha or tau have it. Right. That is also possible. Second is you're losing hair from your crown and from your hairline. M shape basically generally M shape कहा जाता है. When you're losing hair you're losing hair in that M shape. अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि हमने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में कभी नोटिस नहीं करी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया हेयर फॉल इज अ नॉर्मल थिंग. आपने पहली बार आपके किसी फ्रेंड ने कहा यार मेरे भी हेयर फॉल हो रहा है, आपने पहली बार नोटिस किया. तो अगर हेयर फॉल हो रहा है दैट्स अ नॉर्मल थिंग, आपने पहली बार नोटिस किया. और जब आप नोटिस करते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड द बार्डर-माइनहोफ सिंड्रोम. इट्स नॉट अ सिंड्रोम, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग. इसको रेलेवेंसी फिनोमेना भी कहते हैं बेसिकली. जब आप फर्स्ट टाइम यू सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ. आपने 11/11 का कॉन्सेप्ट देखा होगा. आपको जब तक किसी ने नहीं बताया था आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट आपको किसी ने बता दिया कि यार 11/11 लकी होता है, आपको दिखने लग जाता है. तो दैट इज बार्डर-माइनहोफ फिनोमेना. तो जब तक आपको पता नहीं है कि यार ये हेयर फॉल भी कुछ चीज़ होती है, आप उसको नोटिस करने लग जाओ तो आपने ये सीधा डर नहीं जाना है कि भाई ये हेयर लॉस हो रहा है. बहुत लोगों को होता है कि वो फिर उसकी टेंशन लेने बैठ जाते हैं और इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उसकी वजह से हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. सो वो बात है. तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका एक्चुअल में हेयर लॉस हो रहा है? पिक्चर्स. और कोई सोल्यूशन नहीं है. बिकॉज एग्जाम्पल देता हूँ, आज आपका मूड खराब है राइट थोड़ा सा और आपके किसी फ्रेंड ने कह दिया आज ब्रो तेरे बाल नहीं अच्छे लग रहे, आप बिलीव करने लग जाओगे उसको. राइट. सो द ओनली थिंग टू नो वेदर यू आर एक्चुअली लूजिंग हेयर और नॉट इज पिक्चर्स, नथिंग एल्स. राइट. पिक्चर्स लो एवरी 30 to 90 days, सेम एंगल, सेम लाइटिंग, बिकॉज लाइटिंग में यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड थिंग्स. सेम हेयर स्टाइल, देन आस्क योरसेल्फ आर यू एक्चुअली लूजिंग हेयर. राइट. सो सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने लोगों की बातें नहीं सुननी है, आपने खुद को देखना है. डोंट इवन आस्क योर लव्ड वंस. लव्ड वंस आपके दे लव यू, दे थिंक यू आर मच मोर देन योर हेयर. सो इफ दे सी यू वरीड एंड इवन इफ यू आर लूजिंग हेयर दे वुड टेल यू कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है. मेरे मुंडे तो सोना कोई नहीं है. ईस्ट और वेस्ट, माई चाइल्ड इज द बेस्ट. सो इन दी एंड आपको अगर रियलिस्टिक पिक्चर चाहिए, पिक्चर्स लो और कंपैरिजन फोटो बनाओ बिफोर एंड आफ्टर. किसी भी ऐप को यूज करके बना सकते हो आप. इंस्टाग्राम की लेआउट ऐप आती है, कुछ भी यूज कर लो एक्चुअली. एंड बिफोर एंड आफ्टर्स बनाओ. हमें तो बिफोर एंड आफ्टर्स बनाने की आदत है. एंड दैट इज व्हाट. नाउ आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द वेज थ्रू विच इफ यू आर लूजिंग हेयर, जरूरी नहीं है हर किसी को ट्रांसप्लांट ही कराने की जरूरत है. वो भी मैं सिनारियो आपको डिस्कस करूंगा मेरा क्या एग्जैक्ट सिनारियो था. बट उससे पहले सबसे पहले तो मैनॉक्सिडिल है. अभिनव आपने कभी मैनॉक्सिडिल यूज किया? नहीं, यूज नहीं किया. बट लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स हु हैड द हेयर लॉस इश्यूज they've shared their experiences while using that. Yes. सो मैनॉक्सिडिल बेसिकली क्या करता है, आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है. एंड इट इज प्रूवन. राइट. सो मैनॉक्सिडिल सबसे पहले क्या है कि अगर आपके न्यूट्रिएंट्स ही नहीं आ रहे हैं हेयर तक तो चांसेस आर your hair would not be nourished. Right. So minoxidil can help with blood supply. Right. Blood supply and blood supply only. But DHT related जब hair loss हो रहा होता है तब क्या होता है, आपके hair follicle का size ही छोटा हो जाता है. Right. Right. So वो both of them are different things. So minoxidil आपको temporarily help कर सकता है. Right. Till the time you are using it. Right. कि अगर आपने 1 महीना यूज किया, आपको उसने हेल्प कर दिया, आपने फिर छोड़ दिया तो वही न्यूट्रलाइज हो जाएगा सारा इफेक्ट. पहला है माइनॉक्सिडिल. ये DHT के साथ डायरेक्टली कुछ नहीं खेल रहा है, ये सिर्फ आपकी ब्लड सप्लाई इंप्रूव कर रहा है. राइट. नेक्स्ट इज कीटाकनोजोल शैम्पू. आपने जैसे एग्जांपल दिया, इट इज फेमस एंड यूज्ड साइंटिफिकली मेडिसिनली यूज्ड फॉर डैंड्रफ. वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू डील विद डैंड्रफ, स्पेशली इफ इट इज रिलेटेड टू फंजाई. Yes.
बट इट इज ऑल्सो अ माइल्ड DHT ब्लॉकर. Okay. राइट, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में ये बहुत फेमस है कि यार जब व्हेन दे आर ऑन स्टफ लाइक PEDs एंड स्टफ लाइक दैट, Right. उस टाइम पे They use it. they use it. They use it. राइट. नेक्स्ट इज सॉ पोलोमेटो. ये बेसिकली आपके DHT, ये नेचुरल हर्ब है जो आपके DHT को थोड़ा सा ब्लंट कर देता है. Okay. राइट, सो बेसिकली DHT कन्वर्जन को ब्लंट कर रहा है. Right. सॉ पोलोमेटो भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं. इसके अलावा कर्क्यूमिन भी कुछ है. ये तो एक्चुअली आई लर्नड इट फ्रॉम एंड्रयू ह्यूबरमैन पॉडकास्ट ओनली दैट, बट एंड्रयू ह्यूबरमैन रिकमेंडेड कि भाई कर्क्यूमिन तो मैं कभी ना यूज़ करूं बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ही हैड सम साइड इफेक्ट्स फ्रॉम दैट. Right. ऑल्दो कर्क्यूमिन इज वेरी फेमस एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी Inflammatory, एंड स्टफ लाइक दैट. नेक्स्ट आ जाती है मेडिसिनल वो. अगेन दिस इज नॉट डॉक्टर्स एडवाइस, वी आर नॉट डॉक्टर्स बट वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू विद नॉलेज. कभी भी आप कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हो जो आपका DHT ब्लॉक कर रहा है, ऑलवेज टेक डॉक्टर्स एडवाइस. सो 2 तरह के इसमें DHT ब्लॉकर्स आते हैं. एक आता है फिनास्ट्राइड. वो क्या होता है, वो सिर्फ वन पाथवे को ब्लॉक करता है आउट ऑफ 3. सो फर्स्ट पाथवे विच इज द लिवर. सो बेसिकली वो आपके 5-way रिडक्टेज पाथवे को ब्लॉक कर रहा है इन द लिवर. सो बेसिकली इन अ वे वो 50 to 75% आपका DHT को ब्लॉक कर देता है. सो अब DHT की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, वो अगर ब्लॉक हो गया तो उससे आपका हेयर लॉस बच सकता है एंड यू कैन स्टार्ट रीग्रोइंग सम हेयर. So is it like the most effective method? 2 हैं. इस पे भी मैं आता हूँ एक सेकंड में. एंड इनकी थोड़ा सा इशू है इन दोनों के साथ. Right. दूसरा है, नया है डुओस्ट्राइड. Okay. डुआ मीन्स 2. ये बेसिकली दोनों पाथवेज को वो कर देता है. तो बेसिकली इन अ वे ये 95% आपका DHT ब्लॉक कर देता है. 95%. हाँ, तो बेसिकली जो मेन जड़ है उसको ही 95% ब्लॉक कर दिया. बट अब इशू क्या है, DHT के और भी फंक्शंस आपकी बॉडी में. Side effects भी होते होंगे फिर. फंक्शन, लिबिडो, Okay. सेक्स ड्राइव. आई हैव हैड क्लाइंट्स जिनको हाँ, सो कुछ लोगों को इश्यूज नहीं आते बिल्कुल भी. Right. कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आते हैं कि यार दे स्टॉप फीलिंग इट. Right. राइट, दे स्टॉप फीलिंग सेक्स ड्राइव का. अब देखो, अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, सेक्स ड्राइव हो रहा है, इज इट वर्थ इट? अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट. तो मतलब क्वेश्चन आ जाता है, बाल चाहिए कुछ लोगों को हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं कि मतलब अचानक गर्मी से लगने लगी एंड स्टफ लाइक दैट. तो काफी लोगों को सिम्टम्स आते हैं इनके. राइट. तो क्वेश्चन आ जाता है कि बाल चाहिए कि बच्चे चाहिए. हाँ, इन अ वे यस. बाल बिकॉज यस. सो ये वाला है, कुछ लोगों को सिम्टम्स, कुछ लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है, कुछ लोगों के लिए इट वर्क्स लाइक क्रेजी. राइट. एंड देयर आर दीज पीपल हु आर यूजिंग दीज, राइट. फिर भी उनका हेयर लॉस हो रहा है. राइट. वो इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है. राइट. फॉर सम पीपल इट इज टू लेट. राइट. टू लेट मतलब कि निकल गया टाइम. हाँ, बस एकदम ही हेयर खत्म ही हो गए बेसिकली, एकदम ही क्लियर हो गया बेसिकली, फोरहेड जैसे क्लियर हो गया. एंड देन दे हैव स्टार्टेड थोड़े से हेयर वापस आ गए. तो इन दी एंड ये देखो थोड़ी सब्जेक्टिव सी बात आ जाती है. अकॉर्डिंग टू एंड्रयू ह्यूबरमैन ही वाज लाइक कि माइक्रो नीडलिंग होता है एक प्रोसेस, और फिनास्ट्राइड यूज करना उनके लिए बहुत सही है. बट मेरे कुछ क्लाइंट्स रह चुके हैं जिन्होंने फिनास्ट्राइड यूज किया, वो तो कहते 2 बार यूज करके कि यार हाथ जोड़ लिया उन्होंने. राइट. मे बी प्लेसिबो, क्योंकि अगर आप गूगल करते हो यार फिनास्ट्राइड या डुओस्ट्राइड के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट आ जाती है. तो लोगों को लगता है कि प्लेसिबो जैसा, देयर इज समथिंग कॉल्ड नोसिबो. नोसिबो क्या होता है कि आपने पढ़ा कि यार इसका साइड इफेक्ट है, आपको साइड इफेक्ट होना नहीं था पर वो होना लग गया. प्लेसिबो हो गया कि यार वो यार इरेक्टाइल इश्यूज आने लग गए. तो दैट इज ऑल्सो देयर. सो कीप दैट इन माइंड. अपनी रिसर्च करो, अच्छे डॉक्टर से पूछो. देखो इन दी एंड डॉक्टर्स हवा में नहीं बने. राइट. सो करो, ट्राई करो, देखो इफ इट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट. नाउ अब इसमें भी मैं बता देता हूँ. आपने कुछ यूज़ करना स्टार्ट किया, मैनोक्सिडिल यूज़ करना स्टार्ट किया, सॉ पोलोमेटो, आपको मूड के हिसाब से लगने लग गया कि यार मेरा हेयर बेटर हो गया. गाइस, क्लिक पिक्चर्स. राइट. क्योंकि अगर प्लेसिबो, अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि यार आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. राइट. टाइम वेस्ट. आप 1 साल तक ट्राई करते रहे, सोचते रहे हुआ कि नहीं हुआ, एंड उसके बाद आपको यू आर बैक टू स्क्वायर वन. यू आर एट स्क्वायर वन ओनली. तो इन दी एंड अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ जो हम बातें कर रहे हो उसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो, जस्ट क्लिक पिक्चर्स क्लिक करोगे, उससे ही पता लगेगा. वरना आज आपका मूड अच्छा है, आपको लग रहा है बाल अच्छे हैं, अच्छी लाइटिंग है, अच्छा हेयर स्टाइल बन गया आपका जिससे वॉल्यूम ज़्यादा लग रही है, या आपने कुछ वॉल्यूम के लिए यूज़ कर लिया, जेल लगा लिया, उससे बेटर लग रहे हैं, देन इट्स नॉट ट्रू. राइट. सेम सिचुएशन में क्लिक पिक्चर्स एवरी 30 to 60 days, और ऐसे ट्रीटमेंट को गिव देम एटलीस्ट 90 days. बट 90 days में कुछ नहीं हो रहा तो मे बी विजिट योर डॉक्टर अगेन, और मे बी थिंक अबाउट द नेक्स्ट लेवल. राइट. अगेन, कोई भी ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो, गिव इट एटलीस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, आई वुड गिव इट 90 days, नॉट मोर नॉट लेस. राइट. बिकॉज अगर 90 days में नहीं इफेक्ट आया तो चांसेस आर कि दिस इज नॉट वर्किंग फॉर यू. बाय द वे, व्हाट अबाउट द मिनॉक्सिडिल? लाइक डज इट आल्सो हैव द सेम साइड इफेक्ट्स एज द फिनास्ट्राइड? मिनॉक्सिडिल का ऐसा कुछ वो साइड इफेक्ट नहीं है. बस ये एक और साइड इफेक्ट है दैट इफ वुमेन आर यूजिंग इट स्पेसिफिकली, वुमेन के बारे में भी थोड़ा सा बता. एक्चुअली 2 चीज़ें ऐड करते हैं यहाँ पे. श्योर. यस.
Because a lot of my clients who were using minoxidil, they said that they had issue with the libido problem, the same thing, and they used to feel like swelling in their ankles and stuff sometimes. आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी पढ़ा नहीं, बिकॉज अगर पाथवे देखा जाए तो ब्लड सप्लाई बढ़ा रहा है, तो एक चीज़ हो सकती है कि आप बेसिकली आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो, आपके फोरहेड पे भी हेयर आने लग गए, ओके, राइट, बिकॉज इन द एंड ज़्यादा हेयर मतलब आ सकते हैं, हाँ, ओके, नहीं इतने भी ज़्यादा नहीं आता, बट फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े से उधर आने लग गए। थोड़ा मैं फीमेल की बात कर देता हूँ, फीमेल्स की इतनी कोई बात नहीं है। अब देखो फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स भी सस्पेक्टेबल है टू मेल पैटर्न बॉल्डनेस, बट फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन इतना नहीं होता, ठीक है, बट when women are dealing with something like a PCOD, PCOS या hormonal issue, उसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, तो उसमें DHT वाली कन्वर्जन बढ़ जाती है, राइट। सो females also have to take care of these, apart from all the aspects. Deficiencies से आपका हेयर लॉस हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, हार्मोनल इशू से तो हो ही सकता है, जैसे बताया टेस्टोस्टेरोन वाला पाथवे काइंड ऑफ एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। सो कीप दैट इन माइंड। एक और भी चीज़ बता देता हूँ, जैसे विमेन का भी एग्जाम्पल है, फॉर सम मेन एट सर्टेन लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड DHT दे डोंट लूज हेयर, बट इफ दे स्टार्ट गेटिंग टेस्टोस्टेरोन एंड DHT फ्रॉम आउटसाइड इन फॉर्म ऑफ PEDs एक्सेट्रा, तब उनका हेयर लॉस होने लग जाता है। That is why most bodybuilders they go bald after Yes, because their DHT levels are much higher. Right. So keep that in mind. एक और चीज़, क्रिटेन की यहाँ कहीं बात नहीं हो सकती, तो क्रिटेन मैंने कहा यहाँ बीच में I was डाल just देते हैं। about, ये मेरे चल रहा था दिमाग में, ये probably end में पूछेंगे, but it is good that you brought that. Please Yes. go ahead. So अब इसमें मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। एक आधी स्टडी है जो कहती है कि यार DHT रिलेटेड हेयर लॉस बढ़ जाता है, बट इफ यू आर समवन हु इज डीलिंग विद हेयर रिलेटेड इश्यूज, डोंट यूज इट। लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज यू माइट जस्ट बी लूजिंग हेयर बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स और सम अदर रीजन, बट आप एंड में सोचोगे कि यार ओ यार मैं क्रिटेन ना खाता तो हो जाता। तो अगर आपको बिल्कुल भी डर है, इन दी एंड लॉट ऑफ इट थिंग्स हैपन इन योर माइंड। अगर आपको बिल्कुल भी डर है कि यार आपका हेयर लॉस वाला इशू है, डोंट हैव क्रिटेन, इट्स अ ग्रेट सप्लीमेंट बट इट्स नॉट मैजिक, राइट। कोई ऐसा नहीं आपकी बॉडी नहीं बनेगी या समथिंग लाइक दैट, राइट। सो लॉट ऑफ टाइम्स जस्ट थिंक अबाउट योर ब्रेन, बिकॉज आप डर के ले जाओगे, डर के ले जाओगे, व्हाट इज द पॉइंट, राइट। यू वोंट बी एबल टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑल्सो इन अ वे। जो स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ती है आपके ATP CP पाथवे में, जो क्रिटेन हेल्प करता है। तो इफ यू आर स्केयर्ड, इफ यू हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड, डोंट हैव इट, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी एज अ कोच, आई एम प्रीटी श्योर दे आस्क यू ऑल्सो। अब मैं एज अ कोच बोल दूं कि यार खा लो, क्योंकि साइंटिफिकली तो सिर्फ एक ही स्टडी है, दैट्स नॉट अ लॉट ऑफ एविडेंस, बट इन द एंड इफ समवन लूजेस हेयर, दैट पर्सन माइट थिंक यार आई लिसन टू द रॉन्ग पर्सन, राइट। सो लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट बी लूजिंग हेयर फॉर सम अदर रीजन, आपको लगेगी कि यार कुछ और ऐसे स्टैट्स में लर्किंग वेरिएबल प्रॉब्लम कहते हैं। तो अगर आपको डर है बिल्कुल भी, if this question arises in your mind, don't have it. That's my personal take. But honestly, I'll just dive in here a bit. I have had experiences with the clients, and it is actually a real thing. Like some people, they feel much better in terms of their hair loss or hair fall when they stop having creatine. Right. So that, like again, it's not about the studies, it's about the results. Yeah, in the end, अगर आपके mind में a lot of time it translates to reality. Simple. If लेट्स से आपने 1 महीना लिया, आपको लगा आपके बाल झड़ रहे हैं, 1 महीना बंद कर दो, फर्क पड़ रहा है, सही लग रहा है, बेटर हो रहा है, दैट मीन्स जस्ट गेट रिड ऑफ इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। लाइक उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स इट्स अ गुड सप्लीमेंट फॉर मसल बिल्डिंग एंड स्टफ लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट अ मैजिकल थिंग जिसके बिना आप अपनी डिजायर्ड फिजिक या डिजायर्ड एस्थेटिक्स नहीं अचीव कर सकते। कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड इन द एंड गुड दैट बोथ ऑफ अस हैव द सेम ओपिनियन ऑन दिस। ओके, सो फिर ये आगे गाइस, ये हमने अभी तक बेसिकली अंडरस्टैंड कर लिया कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती कैसे है, कौन से पाथवेज है, कौन से पाथवेज जनरली लोग ब्लॉक करते हैं, एंड माइक्रो नीडलिंग प्लस फिनास्टाइड अकॉर्डिंग टू एंड्रयू ह्यूबरमैन। मेरा फिनास्टाइड के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं थोड़े टाइम करा, फिर मैंने ये I'll talk about that. Like, because we are waiting to hear which all treatments did you try and which all treatments didn't work for you, and then what you did. Yes. So we would like to know more about that. Right. So सबसे पहले मैंने ट्राई किया माइनॉक्सिडिल, बट फिर माइनॉक्सिडिल जब मैंने एक्चुअली ट्राई करने स्टार्ट करे ना, मैं काफ़ी टाइम तो इस पे था कि आई लिसन टू माई गर्लफ्रेंड, लिसन टू माई पेरेंट्स हु लव मी अ लॉट, आई यूज्ड टू आस्क देम हेयर लॉस, सो दिस इज व्हाट माई गर्लफ्रेंड यूज्ड टू डू, राइट। शी वाज यंगर देन मी, सो शी यूज्ड टू टेल मी दैट she used to get me good shampoos, right? उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि यार हेयर वगैरह इशू है। she used to tell me यार try this shampoo and all that, because she was trying at her end without making me feel bad. So that was happening. but जब मैंने खुद acknowledge करना स्टार्ट किया कि यार it is a problem, मैंने उनसे पूछा यार कोई प्रॉब्लम है, कहते नहीं, बार नहीं कहते रहे। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले ट्राई किया माइनॉक्सिडिल। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा काफ़ी डिटेल में, मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि जिसके बाल एकदम ही उड़ चुके हैं उसको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। मे बी करंट हेयर को हेल्प कर दे, बट यू नो माई प्रॉब्लम वॉज लाइक
forehead काफी पीछे तक था. Guys, we'll add a picture here or something like that. I'll add a lot of pictures actually, so that those who get motivated from this, we are not advertising hair transplant or anyone, but I think this can help you for sure. फिर मैंने फिनेस्टाइड यूज़ किया थोड़े टाइम, बट 2 weeks करा, बट वो मुझे साइड इफेक्ट्स, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट फील नहीं हुआ, बट मेरे को मन में रहता था कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा. प्लस जितना मैंने पढ़ा था कि एक बार वंस यू हैव लॉस्ट द हेयर इट जनरली डजंट कम बैक. ओके, सो अब मैं इस पे ये नहीं कमेंट कर सकता कि किसी का कभी आ सकते हैं कि नहीं, मे बी आ जाए. आई वुड से ट्राई इट. also you were not that informed about hair treatments and stuff as you are right today. Yes, definitely, but वही है कि यार इंडियन ट्राई कर लो, जस्ट 90 days, टाइम फ्लाइज, राइट. बट 90 days में if you are not getting results, then think about the next level, right. अब आपको अलग अलग ऑप्शंस की बात बता देता हूँ. 3 ऑप्शंस हैं इसके अलावा इन माई नॉलेज. एक है यू गेट अ विग. लॉट ऑफ पीपल यूज दैट, बट आई वॉज लाइक, dude, I was 24 or 25 at that time. I was like, getting a wig and using a wig is not viable for me. Right. एक और आती है चीज़ जिसे कहते हैं हेयर पैच. विग जैसे आपको यू हैव टू रिमूव इट एवरी डे और स्टफ लाइक दैट. हेयर पैच में क्या होता है, यू रिमूव इट वंस इन अ मंथ. Right. यू चेंज इट वंस इन अ मंथ. ये बेसिकली सैलून वगैरह पे हो जाती है चीज़. बट अगेन आई फेल्ट दैट it's not that viable for Not me. a permanent fix for Yes. the confidence that you want to feel. Third, when I started understanding hair transplant, मैंने पढ़ चुका था सारा, but I was like कि यार I'll get it done later in my life. So एक दिन क्या होता है, one of my very good friends, जिससे मैंने हेयर लॉस वाला इशू डिस्कस किया हुआ था, he got it done. एंड वो एनेस्थीसिया में था, नशे में मैसेज कर रहा है, भाई मैंने करवा लिया है, भाई मैं नशे में हूँ, मैंने करवा लिया. एनेस्थीसिया वगैरह यूज़ कर रहा, मतलब वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है. उसका पहले मैसेज आया. फिर दिस वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, यू ऑल्सो नो हिम, बट आई वोंट बी शेयरिंग हिज नेम बिकॉज आई डोंट हैव हिज परमिशन राइट नाउ. ही इज एल्डर टू मी, आई रिस्पेक्ट हिम, आई लुक्ड एंड स्टिल लुक एट हिम एज अ मेंटोर. उनके साथ हमेशा फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती थी. उनका एक दिन रात को मेरे को 2 बजे मैसेज आता है, 2 AM रैंडमली, आप ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करा लेते. So we had a conversation. He literally convinced me for 15 minutes. उन्हें कुछ नहीं लेना देना. But I was like, if a smart person is saying that, who has done it on his own, right, who has helped other 10-15 people to get it on their own, that's when I started considering it. 2-3 महीने किया, सोचा कि यार करना है कि नहीं. फिर मैंने मन बना लिया कि भाई मैंने तो करना ही करना है. उस टाइम पे क्या था, I was at a stage when I was independent myself. right. तो इस लेवल पे था कि ऑब्वियसली वंस यू आर इंडिपेंडेंट, पेरेंट्स वगैरह भी थोड़ा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो मैंने कहा कि मैं तो करवाना है. अब मैं पूछूंगा नहीं, मैं करवाऊंगा. मैं करवाने वाला हूँ. अगेन पेरेंट्स एंड गर्लफ्रेंड हु लव मी, दे सेड ज़रूरत ही नहीं है, कितना अच्छा लगता है ये वो, ज़रूरत ही नहीं है ये वो, हेयर स्टाइल चेंज करा देंगे, वॉल्यूम वाला शैम्पू ला देंगे ये वो. बट मैंने कहा यार मैंने तो मूड बना दिया. आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा. जब ट्रांसप्लांट हो गया और वापस बाल आ गए, थोड़े टाइम बाद आते हैं बाल, आई जस्ट शेयर द प्रोसेस इन अ सेकेंड. जब बाल आ गए तब मैंने गर्लफ्रेंड से पूछा, कहती यार ज़रूरत तो थी. सेम थिंग उनके साथ हुई थी एक्चुअली. ज़रूरत तो थी, पेरेंट्स भी कहते वहाँ मज़ा आ गया, राइट. सो इन द एंड सी योर लव्ड वंस लव यू, बट इन द एंड इफ यू आर डीलिंग विद कॉन्फिडेंस इश्यूज, you have to take a call over that. Sometimes you have to be the one who has to decide what's good for you. For me, one of our friends was the guiding light. I want to be the guiding light for you guys. Why did I never talk about this till now was just one reason. I wanted to talk about it on a podcast. Right. I thought about it 2 years back. मैंने कहा यार podcast में डिटेल में करूँगा और explain करूँगा because this should help a lot of people. Because after I got a transplant, I told so many of my friends who were dealing with the same issues and उनको push करके कहा कि यार you can get it done. And that is what. So basically, in what case should you consider a transplant? Number one, again, this is my point of view. I'm no one to take decisions on your behalf. Number one, it is affecting your confidence. Right. Don't think कि I'll get it done after 3 years, 5 years. Because मैं भी पहले ये सोचता, but 3 years, 5 years में क्या हो जाएगा? You'll just lose 3 to 5 years of confidence. Yes. Right? So number one, take the action if you can, if it is viable for you. Number one, see, there are a lot of people who can sport the bald look. If you are confident, you don't need to give a fuck to what I'm saying. Yeah, become the Vin Diesel, the Dwayne Johnson. In the end, The Rock. Posters लगा लो अपने घर में. हाँ, Johnny Sins. Johnny Sins is one example, right? Yes. The Rock. Now everyone is alive. Yes. Now everyone is, yes, now we are talking. Yes. So, if you want to sport the bald look or whatever look you have right now, if you want to sport that, if you're comfortable with that, see, in the end question आपने खुद से पूछना है. आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी कह रही है, आपका कोई फ्रेंड भी कह रहा है, मजाक उड़ा रहा है. First of all, your friend is stupid. But
इन दी एंड डिसीजन आपने लेना बिकॉज यू हैव टू लिव इन योर ओन स्किन, राइट? I really want Haberman to watch this podcast, man. East are where You Johnny feel like Sins we is have the best. competition now on the market. Yes. Brilliant, So yes. नहीं फिर हबरमैन का देखो, पहले मैं आई वॉज बिफोर वॉचिंग द एपिसोड मैं इतना बिलीव भी नहीं करा, मेरे को तो लगता था यार ट्रांसप्लांट ही बेस्ट हुआ, बट लुक एट हबरमैन्स हेयरलाइन, इट्स गुड. Yes. सो इफ इट्स वर्किंग फॉर हिम यू कैन ट्राई इट एटलीस्ट फॉर अ वाइल एंड देन क्लिक पिक्चर्स. सी प्रूफ, मैं जो कह रहा हूँ वो भी प्रूफ नहीं है, जो कोई भी कह रहा है प्रूफ नहीं है. प्रूफ आपका, सिंस एवरीवन इज डिफरेंट, आपकी फोटो से ही आएगा. तो बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ क्लिक पिक्चर्स एंड सी कंपैरिजन लाइक दीज, राइट? नेक्स्ट इज, first is you have lost hair completely from one area and that is affecting your confidence. If it is not affecting your confidence, no one can stop you, do whatever you like. So let's talk about the situations jinme you can consider getting a transplant. Number one is you have lost hair completely from a certain area and that is killing your confidence. Right. Agar if you are confident, agar aapko koi issue nahi hai, don't listen to the world, don't listen to anyone else, don't listen to me. Enjoy, because in the end, see, it's a confidence game. If anything is killing your confidence, fix it. Yes. If it is fixable, and this is like, permanently fixable. Next is side effects आ रहे हैं आपको 5 reductase inhibitors से, and बहुत high हैं. For example, losing sex drive, your mood is going for a toss and stuff like that. Then you can consider a transplant. मतलब जो हम treatments use कर रहे हैं, for example minoxidil या finasteride, इनसे side effects आ रहे हैं, right? Next is you are not seeing any results और just placebo है. वो आपको कैसे पता लगेगा? पिक्चर्स के अलावा किसी चीज़ से नहीं पता लगेगा, बिकॉज मूड के हिसाब से आप सोच रहे हो तो यार ये चीज़ ले रहा हूँ तो हो रहा होगा उससे, बट फोटोज क्लिक करो. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन, बिकॉज अगेन वंस यू गेट द ट्रांसप्लांट, उसके बाद यू डोंट एसेंशियली नीड टू डू एनीथिंग एल्स, यू आर सॉर्टेड, राइट? Also, if you don't want to take pills long term, so some people are kind of scared of having pills. Right. मुझे personally लगता क्योंकि vitamins वगैरह मैं बहुत खाता हूँ, but I was like यार I just wanted to fix it long term, and I had people around me who fixed it long term, and their hair were looking great, so I was like, why not, right? So अपने experience के हिसाब से stages बता देता हूँ. First was thinking में generally हम सोचते हैं कि यार कोई pill वाला चीज़ मिल जाए because it's easier. But आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, if something is killing your confidence 24/7 365 versus you going through this transplant process which takes 1 to 2 days, what is worse? Right? 2 days, sacrifice of 2 days versus, you not feeling your 100%, you feeling that you're not able to get to where you want to get, where you deserve to get because of that. I would any day choose those 2 days. Right. Again, to each its own, because there are certain people who are scared of treatments because in the end, ट्रीटमेंट तो है ही है, राइट? लगता है एक पूरा दिन लग जाता है. तो अगर ट्रीटमेंट वगैरह से आपको बहुत डर लगता है तो दैट्स समथिंग व्हिच यू कैन थिंक अबाउट. सो अगर आपको ट्रीटमेंट वगैरह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, देन मे बी ट्राई अदर वेज फॉर लॉन्गर. But again, according to me, this is like, a great solution because I got transplant back in 2019 and I'm happy. And confident. By the way, is it painful? Yes, उस पे आ रहा हूँ मैं एक सेकंड में. सो प्रोसेस पे भी आता हूँ कि एग्जैक्टली क्या मेरे लिए क्या प्रोसेस था. ऑल्दो इट वुड बी डिफरेंट बिकॉज इफ यू आर समवन हु हैज लॉस्ट ऑल द हेयर, देन यू माइट जस्ट नीड 2 to 3 sittings, right? And again, most of the people actually waste time here that we'll get it later in life. यार आपके यूथ ईयर्स हैं जब सबसे ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो यूथ ईयर्स में कराओ तो आई थिंक दैट्स बेटर बिकॉज यू विल बी एबल टू एंजॉय योर हेयर फॉर लॉन्गर. इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? So thinking that I'll get it once I turn 35, once बच्चे हो जाएं, that doesn't make sense because अगर आपने जो चीज़ करानी है वो आपने करानी है तो sooner the better, right, according to me. Condition being it is fixable. Condition it is viable for you, right? For some people maybe cost, I'll share the cost in a second. Might be an issue. And okay, so it works or not? सीधा सा हिसाब बता देता हूँ. सक्सेस रेट इस चीज़ का, प्रोसेस का बहुत हाई है. रीज़न फॉर दैट इज़ बेसिकली क्या करते हैं इसमें, आपके ऐसे बॉडी पार्ट्स या आपके हेयर से ही बेसिकली ऐसे पार्ट से हेयर निकालते हैं विच इज़ नॉट सस्पेक्टेबल टू हेयर लॉस. सो बेसिकली आपके हेयर फॉलिकल्स को वो उस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ से आपके बाल उड़ चुके हैं, राइट? तो उसमें वो ऐसी जगह से निकालते हैं जहाँ से आपका डीएसटी रिलेटेड हेयर लॉस नहीं हो रहा. सो बेसिकली मेरे यहाँ से निकले थे हेयर. इफ़ यू आर, आई विल शेयर पिक्चर्स ऑल्सो कि यहाँ से फिर बाल कम हो जाते हैं. नहीं, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है जनरली, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. देयर वाज दिस फ्रेंड हु गॉट इट, जिसने नशे में मेरे को मैसेज किया था. उसके हेयर बियर्ड से भी निकाले थे, थोड़े चेस्ट से भी यूज़ करे थे. सो बेसिकली इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी. फॉर मी इट वॉज जस्ट हेयर फ्रॉम हेयर. अगर जनरली होता है, डॉक्टर्स जनरली प्रेफर गेटिंग हेयर फ्रॉम द हेयर ओनली बिकॉज नंबर 1 यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है
एंड इफ दे आर नॉट एबल टू गेट हेयर फ्रॉम देयर देन वो दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट. एंड हाउ डज इट वर्क? सिंपल सी बात है कि जो आपके हेल्दी हेयर फॉलिकल्स हैं उधर निकाल के वो आगे रिप्लेस कर देते हैं जहाँ से भी बेसिकली आप वेर एवर यू आर फेसिंग दिस बॉल्डनेस. Right. नेक्स्ट इज, डज दिस डिसीजन हेल्प विद योर शादी? आई थिंक इट डज. मेरे को नहीं करना था, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आई हैव सीन पीपल जनरली, बिकॉज ऑब्वियसली वंस यू हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम ड्यू टू बार्डर मैनऑफ syndrome phenomena, you actually start noticing these things more. I've heard this in a lot of conversations where, you know, people are like that, you know, hair matter. I'll come into this later. Right. Right. So that is what. Next is decision. किसका होना चाहिए? सिर्फ आपका, no one else, because you are living this life. Don't ask your friends, don't ask your family. They love you and they love you without hair also, they love you with hair also. But if you are facing confidence issues, it's you who's dealing with the problem. So this decision should always be yours. Next is social proof. Social proof हमेशा help करता है. I'm pretty sure this would help a lot of people because you are hearing it from someone who has got it, right? So social proof helps if you have friends. If you are someone who got it, a lot of people are like that, you know, okay, I'm going to hide it from the world and stuff like that. That's totally your choice. But my point of view was very different because Instagram पे भी मेरे को काफ़ी लोग खुद ही मैसेज कर देते थे कि सर आपने ट्रांसप्लांट कराए या स्टफ लाइक दैट. अब कोई ऐसे मैसेज करता था तो आई ऑलवेज यूज टू टेल देम दैट, यू नो, ओके, दिस इज व्हाट आई डिड एंड स्टफ लाइक दैट, द प्रोसेस विच आई एम शेयरिंग राइट नाउ. एंड अगेन सोशल प्रूफ ऑलवेज हेल्प्स. आपके किसी फ्रेंड ने कराया हुआ है, आपके लिए कराना थोड़ा ईजी हो जाएगा, या आपने करा रखा है तो आपके फ्रेंड्स के लिए कराना ईजी हो जाएगा बिकॉज यू हैव लिविंग प्रूफ ऑफ दैट. राइट गाइज, ऑल्सो हेयर आई वोंट बी शेयरिंग कि किससे कराया था एंड ऑल दैट स्टफ बिकॉज नथिंग इज, अगेन वी आर नॉट मार्केटिंग एनीथिंग हेयर, वी आर जस्ट marketing good stuff here. And which might help few people, which might makes few people aware, because if you are someone whose loved one is thinking of getting something or friend is thinking of getting this procedure, it's nothing to worry about. It's like, you know, quite successful. अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में अपने वाला बता देता हूँ क्या था कि फर्स्ट काफ़ी तेज था एक्चुअली प्रोसेस. फर्स्ट इज मैंने डिसीजन बना लिया, देन आई वेंट टू द पर्सन, वो भी अगेन मैं रेफरेंस से गया था. अगेन बात हुई, वो कहते हैं कि कब करवाना है आपने. सो बेसिकली उन्होंने नहीं कहा कि इतने दिन बाद, कहते हैं आपने कब कराना है. मैंने कहा जब भी बोलो. दे वर लाइक 2 days बाद वी हैव अ डेट, 3-4 days बाद. जस्ट डोंट स्मोक, डोंट हैव अल्कोहल. उस टाइम मेरी सोबर लाइफ ही चल रही थी तो मैंने कहा चलो कोई टेंशन नहीं. फिर 2 days बाद गया मैं. सो बेसिकली मॉर्निंग में उन्होंने सुबह बुला लिया मेरे को. उसके बाद एक साइन करवाते हैं बेसिकली वो कि भाई एनेस्थीसिया वगैरह यूज़ करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ. गाइज ऑल्सो ये मेडिसिनल प्रोसेस है, किसी ऐसे चलते फिरते बंदे से ना कराना. डॉक्टर होना चाहिए, क्लिनिक होना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट. सो वही साइन वगैरह उन्होंने कराया. उन्होंने कहा चलो अब चिल करो. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मेरे को उल्टा लेटा दिया. रीज़न फॉर दैट, उन्होंने यहाँ से हेयर फॉलिकल्स निकालने थे. अगेन गाइज यहाँ मुझे कोई पता ही नहीं लगता कि बिल्कुल भी निकले, ऑल्दो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन होता है. सो उसमें गाइज अब देखो ब्रेन वाला रीजन है तो यहाँ पे एनेस्थीसिया लगता है. एनेस्थीसिया वो ज़्यादा नहीं लगा सकते कि भाई, बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर इज ज़्यादा स्प्रेड नहीं होना चाहिए. तो वो बार बार एनेस्थीसिया लगाते हैं थोड़ा थोड़ा. जब वो एक्चुअली एनेस्थीसिया लगाते हैं वो ही मेन दर्द होता है. एनेस्थीसिया लगता है इंजेक्शन फॉर्म में. तो बेसिकली अगेन फॉर मी दैट पेन वॉज नथिंग इन कंपेरिजन टू द पेन आई वॉज लीडिंग टू, कि हर बार मुझे लग रहा है बाहर जाते. मैं एक्चुअली कैप पहन के घूमने लग गया था लिटरली. एंड उसके बाद जब वंस आई गॉट द हेयर बैक, मैंने कैप कभी नहीं पहनी. लिटरली एक आधी बार पहनी होगी. आई वॉज लाइक लास्ट 2 to 3 years आई जस्ट यूज टू वेयर कैप थ्रू आउट. राइट, वो मैंने उस टाइम कभी सोचा नहीं कि यार मैं कैप ज़्यादा क्यों पहन रहा हूँ. बट अब मैं इफ़ आई लुक बैक दैट वाज बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस आई वाज लूजिंग. सो वही बात है. उसके बाद उन्होंने बस हेयर फॉलिकल्स निकाले. फिर लंच ब्रेक होती है, अच्छा सा खाना खिलाया उन्होंने, लंच उन्होंने खिलाया. उसके बाद बस वो फिर वापस ये आपके फ्रंट वाले एरिया में लगाना स्टार्ट कर देते हैं हेयर. अगेन फॉर मी प्रोसेस वॉज स्टार्टेड एट 9 AM, एंडेड एट 5 PM. दर्द अब लोग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं होता. कुछ लोगों का क्या होगा प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर. कुछ लोग फुल एनेस्थीसिया लगा देते हैं. ओके राइट, उसमें बिल्कुल पेन नहीं होता. अगेन बट मेरा पार्शियल एनेस्थीसिया यूज हुआ था. तो जब एनेस्थीसिया लग रहा था उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था. एंड दैट वाज द प्रोसेस. रात को इवनिंग में मैं घर आ गया था एंड नॉर्मल सो गया था. अब उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो पेन रहता है आपका. अब मुझे 100% एग्जैक्टली याद नहीं है प्रोसेस. 3 साल हो गए. मैं बैठ के सोच के अपने मैसेज हिस्ट्री देख के एग्जैक्ट, वी कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दिस जिसमें मैं आपको डे बाय डे बता सकता हूँ. ओनली इफ देयर इज डिमांड, और कभी AMA आस्क मी एनीथिंग टाइप करेंगे तो उधर शेयर कर लेंगे. तो प्रोसेस इस टाइप का था. इसके बाद कॉस्ट क्या रही थी उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितने स्टैंड्स लगे थे. तो बेसिकली अगेन वी डोंट डिसाइड. इसमें 2 चीज़ें बता देता हूँ कि 2 चीज़ें मैंने डॉक्टर पे छोड़ दी थी. डॉक्टर
उन्होंने देखा कि भाई आपके इतने बाल उड़े हुए हैं तो आपके 3000 स्ट्रैंड्स लगेंगे, वो आपको पर स्ट्रैंड चार्ज करते हैं। उसके बाद उन्होंने जब अगले दिन हेयर लाइन जब वो ड्रॉ कर रहे थे, वो कहते हैं आपको किस टाइप की हेयर लाइन चाहिए। मैं कहा डॉक्टर यू आर द एक्सपर्ट, आप अपने हिसाब से अच्छी सी हेयर लाइन बना दो। मैंने कोई वो नहीं बोला कि यार इसकी फोटो दे दी या उसकी दे दी, जॉनी डेप बना दे। एंड यू नो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद दैट बिकॉज आई लेट द एक्सपर्ट डू द जॉब। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन टेक्स कोचिंग फ्रॉम अस, राइट, लेट अस कोच यू, राइट। सो सेम फॉर द डॉक्टर, मैंने कहा कि यार ठीक है, स्ट्रैंड्स मेरे उसमें यूज हुए थे 3000। I'll, you know, obviously we'll share the pictures and stuff like that. नेक्स्ट पेन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब आज आपका हो गया है, आप घर चले गए हो, नेक्स्ट आपको चेकअप के लिए बुलाते हैं, नॉर्मल चेक करते हैं कि यार ठीक है सब कुछ, ज़्यादा आपको कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जनरली फॉर द नेक्स्ट 7 to 10 days थोड़ा सा पेन रहता है। पेन कब रहता है, वो आपको 3-4 days बाद कहते हैं कि आपने शैम्पू करना है। वो प्रोसेस सिखाते हैं पूरा, शैम्पू कैसे वॉश करना है, मतलब हेड को कैसे वॉश करना है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड होता है। आई शेयर पिक्चर्स ऑल्सो ऑफ दैट ऑल्सो। तो सेंसिटिविटी बैक में होती है। बैक में बेसिकली मेरे लिए फॉर मी इट वॉज नमनेस। फ्रंट में कि टच कर रहा था तो हल्का पता लग रहा था कि यार चलो कुछ हुआ हुआ है प्रोसेस, कोई नाजायज़ दर्द नहीं हो रहा था। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि जब प्रोसेस होता है उसके बाद इन दी एंड तो देखो आपका प्रिक होता है, तो कुछ लोगों की नर्व थोड़ी सी वो हो जाती है, स्वेल हो जाती है। तो नेक्स्ट 2 to 4 days के लिए फेस पे काफ़ी स्वेलिंग रहती है कुछ लोगों के लिए। ओके, अगेन इट्स जस्ट स्वेलिंग, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। मेरे साथ नहीं हुआ था ये चीज़, राइट। सो स्वेलिंग रहती है, वो ये कुछ नहीं है, आराम से चिल करो, कोई ना 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। फिर आई थिंक फर्स्ट 10 days तक थोड़े प्रिकॉशंस रहते हैं। हेयर वॉश से रिलेटेड आपको एग्जैक्टली बता देते हैं, जॉनसन बेबी शैम्पू यूज़ करना है, स्टफ लाइक दैट। उसके बाद आपके क्या होता है, जो आपके वो बना होता है बेसिकली वूंड सा बना होता है, वो आपका अपने आप धीरे धीरे वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। वो आपको डॉक्टर्स वगैरह भी प्रोसेस समझाते हैं कि यार कैसे करना है। सो आप डे 14 के आसपास बेसिकली ये पूरा सिस्टम क्लियर हो जाता है, पेन वगैरह भी हट जाता है सारा। आप देखते हो थोड़े थोड़े हेयर आने स्टार्ट हो गए, सब खुश हो जाते हैं कि वाह इतनी जल्दी, पर ऐसा नहीं होता। जो थोड़े थोड़े हेयर आने स्टार्ट हुए हैं वो बेसिकली आपके उड़ जाते हैं आफ्टर 14 days। कुछ लोगों के साथ 5 to 10%, एक मेरा फ्रेंड है जिनके साथ हुआ कि उनके जो हेयर आए वो ही ग्रो करके, तो बेसिकली उनकी हेयर ग्रोथ काफ़ी फास्ट थी, राइट। बट जनरली क्या होता है कि आपके हेयर कैटेजन फेज में जाते हैं, जो आपके नए फॉलिकल्स लगे हैं और उन पे जो हेयर स्ट्रैंड्स है वो सारे आपके फॉल कर जाते हैं। 14 days के बाद फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बेसिकली एक बार फिर से एकदम क्लियर हो जाता है, वो सारे बाल उड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड शॉक लॉस। कि बेसिकली आपके हेयर फॉलिकल्स को शॉक लग गया कि भाई निकाल के आगे लगाए हैं तो शॉक लग गया। बेसिकली शॉक लॉस कुछ लोगों का वहाँ भी हो जाता है जहाँ से हेयर फॉलिकल्स निकाले होते हैं। अगेन इट वुड बी डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। फॉर मी इट वाज जस्ट द लोअर नेक के जस्ट अबव वाला एरिया, फॉर सम इट्स साइड्स, फॉर सम इट्स चेस्ट ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी हेयर स्ट्रैंड्स यू नीड एंड स्टफ लाइक दैट। अगेन चूज अ गुड डॉक्टर हु यू ट्रस्ट एंड इन द एंड डॉक्टर वुड गाइड यू ऑन दैट। उसमें खुद हीरो नहीं बनना कि आपने यहाँ से निकलवाना है, बिकॉज इन द एंड इट माइट जस्ट बी सब ऑप्टिमल, राइट। सो अगेन केयर हीलिंग वगैरह डॉक्टर आपको प्रोसेस एग्जैक्टली बता देगा, बट वो ये मेरे को याद है 8 to 10 days तक ध्यान रखना था। उसके बाद 14 days बाद सॉर्ट हो गया था। आई थिंक आई डिड नॉट गो टू द जिम फॉर फर्स्ट वीक। उसके बाद अगेन डॉक्टर से पूछो, ये चीज़ है मेरे को जो याद है 1-2 वीक्स के बाद जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। तो अब क्या है कि अब प्रोसेस आपका सारा हो गया। अब आप सोचोगे कि यार ये तो काम किया ही नहीं है क्योंकि बाल उड़ गए अब तो मेरे, बिकॉज दैट इज शॉक लॉस। उसके बाद वापस बाल आने स्टार्ट होते हैं आफ्टर 3 to 4 months। मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। मैंने जनवरी में कराया था। एक चीज़ बताता हूँ, जनवरी की स्टार्टिंग में कराया था मैंने, और उसके 2 weeks बाद मैं ट्रैवल कर रहा था। बेसिकली आई वाज इन सिंगापुर, सो बेसिकली ट्रैवलिंग कोई इशू नहीं था। जिम जा रहा था, कोई इशू नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, उसके बाद बाल उड़ने स्टार्ट हो गए। मई में फर्स्ट टाइम मैंने देखे कि अप्रैल मई में कि थोड़े थोड़े बाल आने स्टार्ट हो गए। अगस्त सितंबर तक हेयर वॉज मच बेटर। एंड अगेन अगस्त सितंबर तक बेसिकली आई वाज मेकिंग इंस्टाग्राम स्टोरीज आराम से हीरो बन के। एंड कुछ लोगों ने पूछना भी स्टार्ट करे, दोज हु नोटिस अ लॉट। एंड नाइस हेयर। सो बेसिकली हमने एक जोक बना रखा है एक्चुअली, जिसने भी ट्रांसप्लांट करा था, आई ऑलवेज मीट देम इंस्टेड ऑफ सेइंग हाय हेलो आई से नाइस हेयर ब्रो। इट्स लाइक दैट इज व्हाट। एंड यू नो फ्रॉम माय फ्रेंड्स जिन्होंने भी कराया है, सबके रिजल्ट्स आए। कॉस्टिंग की मैं बात कर देता हूँ। इट कॉस्टेड मी 1,20,000 रुपीज़। अगेन दिस प्राइसिंग इज़ वेरी हाई, क्योंकि मेरे जब फ्रेंड ने अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले कराया है फ्रॉम द सेम प्लेस, द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रैंड्स कॉस्टेड हिम 90,000। यू कैन फाइंड इट एट मच चीपर प्राइस एट अ गुड हॉस्पिटल और समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। सो बेसिकली प्राइस पे ना जाना। जनरली मेरा पर्सनली रूल ये है कि इफ समथिंग इज कॉस्टलियर इट फील्स बेटर टू मी। जनरली हमारा वो दिमाग जाता है। बट आप ये देखो कि यार बेटर डॉक्टर कौन है।
And for me, whosoever I found was a little costlier, but that worked well for me. And next is getting hair back. You'll get your hair back 6 to 7 months, कुछ लोगों के लिए up to 1 year हो जाता है. उस टाइम पे इस वाले प्रोसेस में वो रिकमेंड करते हैं कि यार मैं नॉक्सिडिल यूज़ करो. तो मैंने 6 months के लिए यूज़ करी थी. आई डिड नॉट वांट टू यूज़ इट थ्रू आउट माई लाइफ. तो मैंने 6 months के बाद बंद कर दी थी. सम रिकमेंड, कुछ डॉक्टर्स ये भी रिकमेंड करते हैं कि फिनास्टाइड यूज़ करो. मुझे साइंटिफिकली उसका लॉजिक कभी समझ नहीं आया, बट अगेन लिसन टू योर डॉक्टर, डॉक्टर्स नो मोर, राइट. बिकॉज अगर आपने हेयर फॉलिकल्स ऐसे लगा रहे हो आप जो DHT से जिनका कुछ लेना देना ही नहीं है, तो हाउ वुड दैट हेल्प? मे बी इट इज़ बिकॉज you have lost certain hair, you might lose more hair, वो more hair बचाने के चक्कर में जो आगे हो सकता है. Also, अगर again if I was that person जिसका और भी hair loss हो रहा होता, I would have gotten it again, but मेरे को कभी वो issue आया नहीं, because मैं अपने मामा वगैरह genetics वगैरह भी देखूँ तो उनका भी certain इतना ही hair loss हो रखा था. Talking about nutrition, sleep, workouts, again sleep has to be on point. Nutrition, जो भी मैंने आपको nutrients बताए, I took care of all of those. Another thing which I did was I stayed around maintenance for the most part. I stayed around maintenance for the most part. Small deficits, not big deficits, not big surplus. Or nutrition, I took care all the vitamins we have discussed already, and that is what. So this was the process. If, as always, guys, if you have any questions, we have a Telegram group which is free where I would answer all of your questions, and we might just do a AMA or another episode on day by day thing if the demand is high, right. And that is what, and this was my take on it. Guys, my inbox is always open for this because I dealt with these confidence related issues for years, 3 years at least, when I started noticing it, and would love to help you with that. And if there are any questions, join the Telegram group, type down in the comment section, and we'll try our best to get back to you. Guys, and first of all, before anything, thank you so much for being such a patient listener in the last 20-25 minutes. I was just about to come to that thing. Guys, I think we need to give a huge round of applause and a huge thank you to Yash for sharing all this information with such an open heart and in such a light manner, because trust me, I've had people जिन्होंने मुझे stories बताई हैं, but I've seen them taking themselves into a victim mode while sharing these stories. I think वो motivational culture हमारा ऐसा हो जाता है कि कुछ भी छोटी दिक्कत आ जाए हमारी लाइफ में, हम उसको बड़ा बना देते हैं ताकि हमारी story interesting लगे. But the way you told and the way you expressed and the way you explained in such a simple manner, I don't think, even single person who has really watched this video till this point, like we all are thankful and grateful, because for me as a coach now, if I have a client who is going through something like that, I have certain basic information or knowledge that I can pass on that is going to be so helpful for that person and for each and every viewer who is, of course, if you're watching an episode or a podcast on hair loss, I'm sure that you must be going through something like this, and I'm sure you must have got a lot of value from this, and that is what we have tried to do it from the first day. We want to keep it a talk show. We want to be very honest, but we also know that we have certain information that we can bring on the table and help you guys and help ourselves in the same manner that we did, because I learned a lot. Thank you, Yash, for that. And yes, guys, please make sure that you're following us on Telegram, and make sure कि आप सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, बिकॉज ये बोलना ज़रूरी है ताकि आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट हो, एंड यू कैन कीप ऑन लर्निंग. एंड हम दोनों के Instagram IDs and the Telegram link will be given in the description, and we're going to see you soon in the next video. Till next time, keep going, keep growing stronger. Keep watching Being Men. See you soon. Bye.